This evening, before we go to worship, we'll read a portion from God's word, meditate, then we worship. आज शाम को खुदा की इबादत करने से पहले चलें हम खुदा के कलाम में से एक हिस्सा हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदा की इबादत करेंगे। Yeah, kindly turn with me to Psalm 92. मेहरबानी करके मेरे साथ मज़ामीर की किताब चैप्टर 92 आप खोलें। We'll read the first 5 verses responsively. पहली 5 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। Verse 1. It's a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, and upon the harp, and with the solemn sound. क्योंकि ए यहोवा तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सानतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Yeah. Let us pray. दुआ करेंगे। Our living, loving Father, most gracious and merciful God, we thank you and praise you for this Lord's Day. This evening we gather in your house to spend some time praising thee, thanking thee, and worshipping thee. Thank you for the portion of the scriptures just now we read. Give us thy thoughts so that we may be filled with the gratitude and we may bring a worthy worship unto thee. May the Holy Spirit help us in expounding the word. In Jesus' precious name we pray. आमीन। This psalm is a psalm for the Sabbath day. ये मजमूर जो है ये सब्त के दिन के लिए गीत है। The Jews always they recite this psalm and during Sabbath day. यहूदी लोग जो होते हैं वो लोग सब्त के दिन इस गीत को जरूर गाते हैं। Yeah, we children of God, purchased by the blood of Lord Jesus Christ, we read and meditate this word on the Lord's day. लेकिन हम खुदावंद यीशुआ के खून के जरिए से खरीदे गए लोग जो हैं हम खुदावंद यीशुआ के दिन को ये मजमूर हम पढ़ते हैं। Yeah, the psalmist says, verse 1, it's a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. पहली आयत में मजमूर नवीस कहता है, क्या ही भला है यहोवा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना ए हक ताला। Yeah, he is a most high God. वो हक ताला है। He dwells in lights that no man can approach unto. वो इस तरह की रोशनी में रहता है जहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। He is a God who filleth the heaven and the earth. वो इस तरह का खुदा है जो आसमान और जमीन को अपनी मामूरी से वो भर देता है। He is all present God. वो हर जगह मौजूद रहने वाला खुदा है। Yeah, heaven is his throne, earth is his footstool. आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पाँवों की चौकी है। Yeah, his wisdom is beyond our understanding. और उसकी हिकमत जो है वो हमारे फहम और जहन से वो परे है। And that God, he is a spirit, and he revealed himself to us in his son Jesus Christ. और वो खुदा जो है वो रूह है और उसने अपने आप को अपने बेटे यीशुआ में हम पर जाहिर किया। Yeah, when you read the book of Colossians, अगर आप कोलोसियों की किताब देखेंगे, there we are told about the greatness of this Lord Jesus Christ, the Son of God. यहाँ पे खुदा का बेटा और हमारे खुदावंद जी यीशुआ की अजमत के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। No man can see God at any time. It is only his son who is in the bosom. He revealed that God to us. किसी ने भी खुदा को कभी भी नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ खुदा के सीने में जो खुदा का बेटा था उसी ने खुदा को हम पर जाहिर किया। Colossians 1 verse 15. कोलोसियों की किताब 1:15। Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। Who is Jesus? खुदावंद यीशु कौन है? Is the express image of the invisible God. वो अंधे के खुदा की सूरत है। See in Hebrew chapter 1 verse 3. अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 3, Who being the brightness of his glory, the express image of his person, upholding all things by the word of his power. वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपने कुदरत के कलाम से संभालता है।
So in him all things were created that are in heaven, that are in the earth, visible, invisible, whether be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Colossians 1:16. और कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। कोलोसियों की किताब 1:16, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। Yeah. So he is the King of Kings and the Lord of Lords. तो वो कौन है? वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। Yeah, in Revelation chapter 1 verse 8 he says, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, said the Lord, which is, which was and which is to come, the Almighty. मुकाशिफा की किताब 1:8 में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। Yeah, he is the most high God. वो कादिर मुतलक है। That's what we have to worship him. इसीलिए उसकी इबादत हमें करनी है। That's what the heavenly beings cease not day and night to worship him. Holy, holy. इसीलिए आसमानी जानदार भी उसके तख्त के चौगिर्द रहते हुए उसकी सिताइश बजा लाते हैं और कहते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, दिन रात वो पुकारते रहते हैं। Yeah, in the book of Isaiah chapter 6, यशायाह की किताब बाब नंबर 6 में here also we find he is being worshipped. यहाँ भी हम देखते हैं कि खुदा की इबादत वहाँ होते हुए हम देखते हैं। Yeah, the seraphims, each had 6 wings, and twine covered the face, and twine he covered his feet, and twine he did fly, and cried to one to another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. 6:2 उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक को 6 बाजू थे और हर एक को 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 लश्करों का यहोवा है। Yeah, he is the most high God and he is the holy God. वो सारे इंसान मतलब सब पर ऊपर है, हर चीज पर ऊपर है, कादिर मुतलक है। Then verse 2, Psalm 92 verse 2. उसके बाद हम मज़ामिर की किताब 92 की 2 हम पढ़ते हैं। To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। Yeah, here he speaks about God's loving kindness in the morning and his faithfulness every night. यहाँ पे खुदा की शफकत और हर रात उसकी वफादारी के बारे में ये जिक्र कर रहा है। Yeah, he is a God, he is a merciful, gracious, compassionate and long-suffering God. हमारा खुदा जो है ये बहुत रहीम है और बहुत करीम है और ये रहम राहमीन है। We cannot understand his mercies towards us. उसकी रहमतें शफकतें हम पर कितनी बड़ी हैं हम समझ नहीं सकते। Yeah, so we have to worship him for his loving kindness and tender mercies. इसीलिए उसकी शफकत को लेकर और उसकी रहमतों को लेकर उसकी इबादत करना हम पर लाजमी है। Yeah, Exodus chapter 34 verse 6. खुरूज की किताब चैप्टर 34 की 6। And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. और यहोवा उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, यहोवा यहोवा खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। Yeah, that Almighty God is a merciful, gracious and compassionate, long-suffering God. वो कादिर मुतलक खुदा जो है वो खुदाए रहीम है और मेहरबान है और कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। Yeah, God, out of his mercy, he delivered the children of Israel from Egyptian bondage after 430 years. खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक 430 सालों के बाद इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। And the children of Judah he has delivered from Babylon after 70 years. और यहूदा मुल्क के लोगों को खुदा ने बबलोन से
Yeah. बाबिल से तकरीबन 70 साल के बाद छुड़ाकर वापस लाया था। Yeah, the great and mighty things God has accomplished in the lives of the children of Israel. इसराइल के बच्चों की जिंदगियों में खुदा ने अजीब व गरीब काम, बहुत बड़े अमाल किए हैं। Though they disobeyed God, they wrought reproach unto His name, but yet this God is merciful towards them. उन लोगों ने सरकशी दिखाई और खुदा के नाम को बहुत बदनाम किया, फिर भी खुदा ने अपने रहमत से उन लोगों पर रहम दिखाई। We cannot understand His mercy towards us. रहम दिखाया, और क्यों, और इससे हमें पता चलता है कि खुदा का रहम जो है उसे हम समझ नहीं सकते हैं। Yeah, God who is rich in mercy, with a great love He has loved us. खुदा जो रहमत में गनी है, वो उसने हम पर भी मेहरबान हुआ। Yeah, what a wonderful God. हमारा खुदा कितना ही मेहरबान अजीम खुदा है ना। Yeah, we cannot understand His mercies and grace day by day abounding towards us. हमारे ऊपर खुदा की रहमतें और उसके करम दिन ब दिन कितने ही अजीम हैं, हम समझ नहीं सकते। Yeah, God raised His people and delivered children of Israel and brought them to the promised land. खुदा ने इस्राएली लोगों पर अपना रहम दिखाया और उनको मऊदा मुल्क में सलामती से पहुंचाया। Yeah, the Israelites always remember the handiwork of God through Moses. और इस्राएलियों ने हमेशा खुदा की दस्तकारी जो उसने दिखाई थी मोशे के जरिए से, उसे याद करते रहते हैं। Yeah, here He says in verse 4, and for thou Lord, Psalm 92 verse 4, for thou Lord hast made me glad through thy work, I will triumph in the works of thy hands. चैप्टर 92 वर्स 4 मज़ामीर की किताब, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ए यहोवा तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनातकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। Yeah, God has made them glad through His work. खुदा ने अपने काम के जरिए से उन्हें शादमान किया है। Yeah, delivered them and led them, brought them to the promised land. मतलब खुदा ने उन्हें गुलामी से छुड़ाया और उनको आगे बढ़ाया और उनकी हिफाजत करते हुए मऊदा मुल्क में पहुंचाया। Yeah, as a father beareth his son, he bore them. जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे को उठाकर ले जाता है, इस तरीके से खुदा ने भी उनको उठाकर उन्हें संभाला। As an eagle bears his chick, he bore them. जैसे एक उकाब अपने बच्चों को अपने परों पर वो उठाकर ले जाता है, इसी तरीके से उसने भी उनको अपने परों पर उठाया। Yeah, that's what they are glad through His work. इस वास्ते वो कहते हैं उसकी सानतें या अमाल या काम देखकर हम खुश हैं। Yeah. Brutish man cannot understand this. और इन बातों को जानवर जैसे लोग समझ नहीं सकते हैं। Verse 6 says, आयत नंबर 6, a brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक इसको नहीं समझता है। What the great God has done to His people, nobody understands. ये अजीम खुदा जो उसने अपने लोगों के लिए किया है, इन बातों को सब लोग समझ नहीं सकते। So also our God, what He has done in our lives, and nobody knows what a great thing God has done to us. इसी तरीके से हमारी जिंदगियों में भी जो कुछ खुदा ने हमारे वास्ते भी किया है, इन बातों को हम दूसरों को जब बोलते हैं वो भी समझ नहीं सकते। Yeah, we were sold under sin and Satan. हम कैसे थे? हम भी बिक चुके थे, गुनाह और सातान के हाथों बिक चुके थे। Yeah, we were under the government of the Satan. हम सातान की सल्तनत में, उसकी सरकार के नीचे थे। Yeah, another word we say under the power of darkness. मजीद अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि हम तारीकी के इख्तियार के मातहत थे। Yeah, God has delivered us from the power of darkness. लेकिन खुदा ने क्या किया? उसने तारीकी के कब्जे से, उसकी कुव्वत से हमें छुड़ाया। He has delivered us unto the kingdom of His dear Son. उसने क्या किया? हमें अपने इकलौते प्यारे बेटे की सल्तनत में, उसकी रोशनी में हमें ले आया। Yeah, Colossians chapter 1, कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 verse 13. और आयत नंबर 13, Who has delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया।
Yeah, what a wonderful thing it is. कितनी अजीब बात है ना ये। We were lifetime subjected to bondage of sin हम and Satan. तो सातान के कब्जे में थे और गुनाह की गुलामी के कब्जे में थे। But God, out of His mercy, loved us, sent Jesus Christ through His precious blood. We are delivered. लेकिन खुदा ने खुदावंद यीशुआ में हम पर अपनी मोहब्बत दिखाई और क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने खून बहाया, उसके खून की बदौलत हम नजात पाए हैं। Yeah, verse 14 he says, 14वीं आयत, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। Yeah, we are redeemed people. हम नजात याफ्ता लोग हैं। Yeah, not redeemed by the corruptible things like silver and gold of this earth. हमारी मखलसी इस दुनिया के सोना या चांदी से नहीं हुई, But by His precious blood we are redeemed. लेकिन खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून से हमारी खलासी हुई है। First Peter chapter 1 verse 18. पहला पत्रस 1:18। For so much as ye know that ye were not redeemed with the corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। Yeah, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। It's beyond our comprehension. ये हमारे समझ से परे है। We did evil, we were living in sorrow, we were in remorse. But the day when we confess our sins, our life has been transformed. हम तो गुनाह में थे, हम तो तारीकी में थे, हम नावाकिफ रहे थे, लेकिन जब हमें नूर पाया है हमने, तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो गईं। The day when we confess our sins, Lord, I am a sinner, forgive my sins. Thank you for dying for my sins on the cross of Calvary. Immediately our sins were forgiven. Joy unspeakable, full of glory was given to us. जिस दिन हमने खुदावंद यीशुआ से दुआ मांगी और कहा, ए खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को मुआफ कर, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करके गुनाहों का इकरार करके तौबा जिस दिन हमने किया और खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाकर उन्हें हमारे नजात दहिंदा बना लिया, उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। Years and years we are living in remorse. हमने तो बहुत सारे बहुत साल हम पछतावे में जीते थे। No joy in our lives. हमारी जिंदगी में खुशी नहीं थी, No hope in our lives. हमारी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी। But the day when we gave our life to Lord Jesus Christ, life has been changed. लेकिन जिस दिन हमने हमारी जिंदगी को खुदावंद यीशुआ के हाथों में सौंपा, उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। I know very well as a young boy when I attended a meeting and when I confessed my sin and I was crying and confessing, I received joy unspeakable, full of glory. मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एक नौजवान लड़का था, कमसिन लड़का था, और जब मैंने एक बार एक यीशुई मीटिंग को गया था और वहाँ कलाम सुना और मेरे अंदर तब्दीली हुई, मैं मेरे गुनाहों को मानते हुए, इकरार करते हुए, रोते रोते खुदावंद यीशुआ के पास तौबा करके गुनाहों की माफी पाई। Yeah, he made me glad through his work. और इस तरह वो मेरे अंदर काम करके मुझ में उसने खुशी पैदा की। What a wonderful thing it is. ये कितना ही अजीम काम है ना। Many of us sitting and hearing, you have that experience. यहाँ जो भी हैं, जितने भी सुन रहे हैं, शायद आपको भी इस तरह का तजुर्बा आपके अंदर होगा। Yeah, say First Peter chapter 1 verse 8. देखें पहला पत्रस 1:8। Whom having not seen he love, in whom though now we see him not, yet believing he rejoices with joy unspeakable and full of glory. उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। Yeah, he made us glad through his work. उसने अपने सलीबी काम से हमारे अंदर बड़ी खुशी पैदा की है। Yeah, David he says in Psalm 4. और दावीद क्या कहता है मजमूर 4 में verse 7. और आयत नंबर 7, Thou hast put gladness in my heart, more than in the time of their
corn and their wine increased. तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ले और मई की फिरावानी से होती थी। What a wonderful God. हमारा खुदा कितना ही अजीम है ना। He has forgiven our sins by His precious blood. उसने अपने खून से, बेशकीमत खून से हमारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। Yeah, He has redeemed us from the power of darkness. उसने तारीकी के कब्जे से हमें छुड़ा दिया। He has given us joy unspeakable and full of glory. उसने हमारे अंदर इस तरह की खुशी दी जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। Day by day, He is making us joyful through His spiritual and eternal things which He has prepared for us. और वो दिन ब दिन हमें उन आसमानी चीजों से वो हमें खुश करता है जो उसने हमारे वास्ते मुस्तकबिल में हमें देने के लिए तैयार की है। After our salvation, He has added unto the church. उसने हमारे नजात के बाद हमें क्या किया? हमें एक्लीसिया में शामिल कर दिया। In the church through the word and the Holy Spirit whom He has given in the day of redemption, and He is making us joyful day by day. और खुदा के एक्लीसिया में शामिल होने के बाद खुदा ने क्या किया? अपने पाक रूह को हमारे अंदर दे दिया ताकि हमें और दिन ब दिन रूहानी तरीके से खुशी बख्शे। When the first church was established and the time of disciples, and what a great joy they enjoyed. और पहला एक्लीसिया जब बनाया गया था शागिर्दों के दरमियान उन दिनों में क्या ही बड़ी खुशी थी। Some Acts Apostle chapter 2 आमाल की किताब बाब नंबर 2 and verse 47 और 46वीं आयत। And they continuing daily with one accord in the temple breaking bread and from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। With gladness. और उनके दरमियान बहुत खुशी थी। When you come to the house of God, you are filled with joy. जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आपके अंदर खुशी होती है। Because it is His work which has accomplished in our lives. क्योंकि उसने अपना ही काम हमारे अंदर कामिल किया है। Our sins are forgiven. हमारे गुनाह मिटा दिए गए। He changed our destiny. उसने हमारी मंजिल जो है उसे उसने बदल दिया है। He has made us His children. और उसने हमें अपने लेपालक बच्चे बना लिए। He has made us a peculiar treasure unto Him. और उसने हमें अपने लिए एक खास मिल्कियत बना ली है। First Peter chapter 2 verse 9. देखें पहला पत्रस 2:9। But ye are the chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness unto His marvelous light. लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। We have become a special people. हम खुदा के लिए एक खास लोग बन चुके हैं। We have become a treasure unto Him. खुदा के लिए हम एक मिल्कियत बन चुके हैं। He is mindful of us. वो हमारी फिक्र करता है। We have a treasure, how we are taking care of it. जिस तरह एक खजाने को हम खजाने के बारे में हम फिक्रमंद रहते हैं वो वैसा करता है। How that we have become God's treasure. He takes care of us. और जैसे ही हम खुदा की मिल्कियत या खजाना बने हैं वो हमारी फिक्र करता We है। are not belong to this world. हम इस दुनिया के लोग नहीं रहे। So we live and our citizenship is in heaven. हम यहाँ तो अपनी जिंदगियां गुजारते हैं लेकिन हमारी सिटीजनशिप जो है वो आसमान में है। See in Colossians chapter 1 verse 13. कोलोसियों की किताब 1:13। He has delivered us from the power of darkness and He has translated us unto the kingdom of His dear Son. उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। What a wonderful thing. ये कितनी ही अजीम बात है ना। He has made us the partakers of the inheritance of the saints in light. Verse 12. और 12वीं आयत में पढ़ते हैं और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के
साथ मीरास का हिस्सा पाए हैं। Yeah, we have become the blessed people. हम मुबारक लोग बन चुके हैं। We have an inheritance in eternity. हम मुस्तकबिल में हमेशा के लिए एक मीरास पाए हैं। Yeah, see verse 20 and 21. देखें वर्स 20 और 21। And having made peace through the blood of the cross, by him reconcile all things unto himself. By him, I say, whether be things in earth or in heaven, and you were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. Now he hath us reconciled. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खाह वो जमीन की हो, खाह आसमान की। Yeah, he have made peace through the blood of his cross. उसने अपने सलीब के जरिए से वो सुलह किया। And we were enemies, now alienated. We were enemies, now we are reconciled. हम तो उसके मुखालिफ रहे, लेकिन अब हम मेल मिलाप में आ चुके हैं। Is it not the great work which God has done in our lives? हमारी जिंदगियों में क्या ये खुदा से किया गया बहुत बड़ा काम नहीं है? It's beyond our understanding. ये बातें हमारी समझ के परे हैं। Go, you are unworthy and fit for nothing, and to be judged and cast into the lake of fire. And God has been merciful towards us. हम तो नाकाबिल रहे, नाकाम रहे, लेकिन हम आग की झील में जाने के लायक तो थे, लेकिन खुदा ने हम पर अपनी रहमत दिखाई। Now we have come under the power of God, and who is holy and is almighty. अब हम खुदा की उस ताकत के कब्जे में, उसकी ताकत के नीचे आए हैं, जो कादिर मुतलक है और हमारा रब्बुल अफ़वाज है। No power of darkness in our lives. अब हमारी जिंदगियों पर किसी भी तारीकी की ताकत तासीर नहीं हो सकती, But the power of light, that is Lord Jesus Christ, who is the head of the church. लेकिन नूर की ताकत हमारे ऊपर है, मतलब हमारे खुदावंद यीशुआ की ताकत जो इक्लीसिया का सिर है। In the church, he nourisheth us and cherisheth us. और इक्लीसिया के अंदर हमें रख कर इक्लीसिया में हमें वो ग़िज़ा देता है और तक़वियत बख्शता है। What a wonderful thing. ये कितनी बड़ी बात है ना। Unfit for all these blessings, but out of his mercy he did. इन सारी नेमतों के लिए हम तो नाकाबिल थे, हम नालायक थे, लेकिन उसने ये सब कुछ हमारे वास्ते किया। That's what this day we have to sing praises unto him, thank him and adore him. इसीलिए आज के दिन हम उसकी हमद व सिताइश गाएंगे और इबादत करके हम उसकी तमजीद बजा लाएंगे। Yeah, come back to Psalm 92. वापस आएंगे चैप्टर 92 मज़ामीर की किताब। How beautiful it is to praise God. यहाँ देखते हैं कि खुदा की इबादत करना कितनी ही भला है। Yeah, that's what the psalmist here he says. It's a good thing to give thanks unto the Lord. Sing praises unto thy name, O Most High. इसीलिए यहाँ पे पहली आयत में मज़हबी नवीस कहता है, क्या ही भला है यहोवा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना ए हक ताला। So let us remember God's greatness and his goodness towards us and praise him and adore him and glorify him. इसीलिए खुदा की भलाई हमारी जिंदगियों में जो कुछ है वो सब कुछ हम देखेंगे, उसकी रहमतें शफकतें हम देखते हुए उसकी इबादत करेंगे, हम्दो सना अब बजा लाएंगे कलाम के मुताबिक। Yeah, with a few thoughts we go to worship. इन चंद ख्यालात के साथ हम इबादत में शामिल होंगे।